especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown that when Putin saw what happened, I guess he said, wow, maybe this is my chance. That's how bad it was. Should have never happened. Grossly incompetent people. I spoke to many of the parents and loved ones, and they're all in our hearts tonight. Just spoke to them on the phone. We had a big call. Every one of them called, and everybody was on the line, and they did nothing but cry with happiness. They were very happy, as happy as you can be under those circumstances. Their child, brother, sister, son, daughter was killed for no reason whatsoever. In the Middle East, we're bringing back our hostages from Gaza. In my first term, we achieved one of the most groundbreaking peace agreements in generations, the Abraham Accords. امریکہ کے صدر کا دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر. امریکی فوجیوں اور لاتعداد افراد کو نشانہ بنانے میں ملوث داعش کے اہم دہشت گرد کی گرفتاری اہم قدم ہے. اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہیں. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کانگریس سے پہلا خطاب. داعش کے کمانڈر کی گرفتاری اہم دن ہے. گرفتار دہشت گرد کو امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے. یہ دن ان 13 خاندانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے جو اس دہشت گردی کا نشانہ بنے. افغانستان میں امریکیوں کو ہلاک کرنے والا امریکہ میں قانون کا سامنا کرے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ. وزیراعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے اعتراف پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے. دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں. علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھیں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار. عسکریت پسند گروپوں کی کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی اور محفوظ پناہ گاہوں کی فراہمی روکنے پر یقین رکھتے ہیں. دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت اور عوام کا عزم غیر متزلزل ہے. وزیر اعظم. کابل ایئرپورٹ پر 2021 میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کی گرفتاری. 26 اگست 2021 کو اس حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے. داعش کمانڈر امریکی خفیہ ایجنسیوں کا اہم ہدف تھا. دہشت گرد کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری پاکستان اور امریکی انتظامیہ کے درمیان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون کی مظہر ہے. بنو کینٹ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ ناکام. سیکیورٹی فورسز نے افطار کے بعد دہشت گردوں کی بنو کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی. بروقت کارروائی پر گھبراہٹ میں دہشت گردوں نے بارود سے لدی 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرا دیں. 6 خارجی جہنم واصل، باقی ماندہ دہشت گرد محصور. بزدلانہ حملے میں 12 بے گناہ شہری شہید، 32 زخمی. دھماکے سے قریبی مسجد کو نقصان پہنچا. افطار کے وقت نہتے شہریوں اور مسجد کو نشانہ بنانے سے واضح ہو گیا کہ خارجیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خارجیوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. سیکیورٹی ذرائع. وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی بنو کینٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت. سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. بزدل دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں. فتنۃ الخوارج پاکستان کے دشمن ہیں. ان کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے. وزیر اعظم اور صدر مملکت.
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन पख्तून यार खान की बन्नू हमले की शदीद मजम्मत। बुज़दिलाना हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दी जिस भी शक्ल में हो हम उसके खिलाफ हैं। इस नासूर के खिलाफ हमारा अज़्म कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पख्तून यार खान। India charges us auto tariffs higher than 100%. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. अमरीकी सदर का भारत को तिजारत में रिलीफ देने से इनकार। 2 अप्रैल से भारत समेत जो मुल्क अमरीका पर टैक्स लगाएगा उस पर जवाबी टैक्स लगाया जाएगा। अमरीका के सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप। अमरीका को अजीम बनाने के लिए डेमोक्रेट को मिलकर काम करने की दावत। इमदाद के तौर पर दिया पैसा वापस लाकर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है। डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से खिताब। माशी बदहाली से इक्तिसादी इस्तेहकाम तक का सफर। मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का पहला साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। बरवक्त इक़दामात से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। तमाम इदारे मुत्तहिद होकर तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हर मुश्किल में साथ देने पर इत्तेहादियों के मशकूर हैं। एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। 1 साल भी हुकूमत के खिलाफ करप्शन का एक केस भी सामने नहीं आया। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर तरक्की और खुशहाली का सफर जारी नहीं रह सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। SIFC की मुआवनत से मवासलात के शोबे में इनकलाबी इक़दामात। सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 मंसूबे की तकमील अव्वलीन तरजीह। सियालकोट खारियां M12 और खारियां रावलपिंडी M13 मोटरवे को भी जल्द मुकम्मल किए जाने का अज़्म। मंसूबों की जल्द तकमील की बदौलत मुल्क की मईशत में बेहतरी का इम्कान। तजारती नक्ल हमल और रोजगार के मौक़े में इजाफा मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के DG की तफसीली ब्रीफिंग। फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का भी जायजा लिया गया। 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म। लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। मरियम नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। एडवोकेट बुशरा कमर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड लाहौर में मद्दे मुकाबिल। मुकाबला दिन 2 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। PCB का मैच के दौरान शायकीन को मुफ्त इफ्तार कराने का ऐलान। शायकीन स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। भारत 5वीं मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज 264 रन पर आउट। स्टीवन स्मिथ के 73 और एलेक्स कैरी के 61 रन। मोहम्मद शामी की 3 विकेटें। भारत ने हदफ 48.1 ओवर्स में 6 विकेटों पर हासिल किया। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली की 84 रन की इनिंग्स। फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा। तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। जंग से तबाहाल गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए काहिरा में हंगामी अरब सरबराह इजलास। गजा के मुस्तकबिल के लिए मिस्र का मुजवजा लाए अमल मंजूर। मंसूबे पर $35 अरब लागत का तखमीना। फलस्तीनियों का खैर मकदम। इसराइल गजा में बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करे। गजा में मौजूदा कशीदा सूरत हाल का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस।
श्रीलंका में ITF व्हील चेयर टेनिस टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने ईरान को 2-1 से हराया। जापान की मर्द और खवातीन दोनों टीमों ने गोल्ड जीतते हुए वर्ल्ड ग्रुप इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। यूएफा चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले का आगाज। पहली लीग इंग्लिश क्लब आर्सेनल की डच क्लब PSV आइंडहोवन पर गोल्स की बरसात। एक के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। हस्पानवी क्लब रियल मैड्रिड ने हमवतन पड़ोसी टीम एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 गोल से हराया। फ्रांसीसी क्लब लॉयल और जर्मन क्लब डॉर्टमंड का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल्स की भी पहली लीग सऊदी क्लब अल अहली ने कतर की टीम अल रियान 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। उज़्बेकिस्तान की टीम पख्तपूर ने सऊदी प्रोफेशनल लीग चैंपियन अल अहल को 1 गोल से हराया। अल हिलाल की टीम गोल करने में नाकाम रही। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मैं दूंगी साथ आपका रुमैसा कुरैशी। वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान में इंतहाई अहम दहशतगर्द की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने के बाद कांग्रेस से अपने पहले खिताब में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करते हैं। तफसील इकरामुल्लाह महसूद की इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद कांग्रेस से अपने पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फौजियों और लातादाद अफराद को हलाक करने वाले दाइश के सरकर्दा दहशतगर्द को पाकिस्तान के ताउन से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाइयों पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकियों को हलाक करने वाला अमरीका में कानून का सामना करेगा। America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि भारत समेत दीगर मुल्कों पर टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. India charges us auto tariffs higher than 100%, and South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. यूक्रेन जंग के बारे में अमेरिकी सदर का कहना था कि मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सकता है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने खत में मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ भरपूर ताउन पर रजामंदी जाहिर की है। I'm also working tirelessly to end the savage conflict in Ukraine. Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. But I want it to stop. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. अमेरिकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए इब्राहिम मंसूबे पर अमल दरामद तेज किया जाएगा। In my first term, we achieved one of the most groundbreaking peace agreements in generations, the Abraham Accords. And now we're going to build on that foundation to create a more peaceful and prosperous future for the entire region. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इस हवाले से कवानीन को मजीद सख्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मादनियात की पैदावार को बढ़ाने के लिए तारीखी इकदामात किए जाएंगे। $50 लाख गोल्ड कार्ड जारी करेंगे, जो ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। अपना कर्ज गोल्ड कार्ड लेने वालों की रकम से उतारेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि इमदाद के तौर पर दिया गया पैसा वापस लाकर महंगाई को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ISKPR का ऑपरेशन कमांडर शरीफुल्लाह जो अफगान शहरी और एक मतलूब है, इसको पाक अफगान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान दहशतगर्द और अस्करियत पसंद ग्रुपों को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महफूज पनाहगाहों की फराहमी को रोकने पर यकीन रखता है। हम दहशतगर्दी के मुजाहिरीन से निपटने के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम हैं। इस कोशिश में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें हमारे 80,000 से ज़्यादा बहादुर फौजियों और शहरियों ने जानें कुर्बान की। हमारे मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए हमारी क़यादत और हमारे अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हम इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। खबरनामा भी जारी है। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 30 अरब रुपए के निगहबान रमजान पैकेज के तहत कम आमदनी वाले 30 लाख घरानों को पंजाब भर में 18,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बगैर किसी फीस 10,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद की फराहमी कामयाबी से जारी। किसी भी फर्द या एजेंट की जानिब से रकम का मुतालबा या कटौती कानूनन जुर्म है। इसकी शिकायत 0800023445 पर फौरी दर्ज करवाएं। रकम में कटौती करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। निगहबान रमजान, आपका हक आपकी दहलीज पर। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान ने अमरीका खुफिया एजेंसी की इत्तलात पर अफगान शहरी और सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया था, जो 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। सदर ट्रंप ने अमरीकी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले को अमरीकी तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा करार दिया है। अमरीकी सदर ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में दाइश कमांडर की गिरफ्तारी का इंकशाफ करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी में कलीदी किरदार पर हुकूमत पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तानी इदारों ने स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया। उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन का मजहर है। बन्नू कैंट पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम। इफ्तार के बाद दहशतगर्दों की बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। बर वक्त कार्रवाई पर घबराहट में दहशतगर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी और मुख्तलिफ दाखिली मकामात पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने 6 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि बाकी मानदा दहशतगर्दों को महसूर कर लिया। हमले में 12 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी भी हुए। धमाके से करीबी मस्जिद को नुकसान पहुंचा और एक घर की छत मुनहदम हो गई। इफ्तार के वक्त बेगुनाह शहरियों और मस्जिद को निशाना बनाने से वाज़ेह हो गया कि खारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का तमाम खारिजियों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बन्नू कैंट पर इफ्तार के दौरान दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बन्नू कैंट पर खवारिज का हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फितनतुल खवारिज पाकिस्तान और उसके मासूम शहरियों के दुश्मन हैं, जिनके नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए हमले में मासूम शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इज़हार किया और शाहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि फितनतुल खवारिज की मुकम्मल सरकूबी तक इसके खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है।
सदर ममलकत ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। फितनतुल खवारिज के हमले में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया और शहादत की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। रमजानुल मुबारक में इफ्तार के वक्त हमला एक घिनौना अमल है। उन्होंने कहा कि फितनतुल खवारिज की सरकूबी के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन पख्तून यार खान ने भी बन्नू हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इन बुज़दिलाना हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी जिस भी शक्ल में हो हम उसके खिलाफ हैं। इस नासूर के खिलाफ हमारा अज़्म कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। نو زه د دې بزدلانه حمله پر زور مزمتم کوم په حیثیت د علاقې د نماینده په حیثیت او په حیثیت د بنو د یو شهري په حیثیت باندې او سره په افطاري ټیم باندې داسې بزدلانه حمله چې پاکي مشومان زمونږ زنانه او زمونږ د منځو کوونکي خلک افطاري باندې ناس خلک شهیدان شول. نو موږ د دې پر زور مزمت کوو او داسې د دې حالات مقابله به ان شاء الله موږ پر روان وخت کې کړم دا بیا به کوو ان شاء الله. او زه بیا په اخر کې د دې کیسې خبرې چې کومه د نن د وقوع بزدلانه حمله وشوه دهشتګردي په هر کوم لباس کې دا په هر کوم شکل کې د موږ دغه پر زور مذمت پیلم کړی دی. نن بیا هم کوو او سبا بیا هم د دې مذمت کوو او سره ان شاء الله موږ په دې حالاتو باندې نظر دی. موږ په ټول په حیثیت زما فیملی هلته موجوده ده په هسپتال کې او سره د صوبایي حکومت چې کوم اقدامات یا لګیا دي زما د صوبې د مشر هم په دې باره کې خپل سټیټمنټ کړی دی او سره هغه چې کوم اقدامات آرډر کړي دي ان شاء الله پیغام د من خبره لګیا ده. خو زه بیا هم په اخر کې د دې پر زور مذمت کوم د دې واقعې او الله پاک د لوحقین ته صبر جمیل ورکړي. خدای الله پاک د زخمیان ټول صحتیاب کړي او ان شاء الله د دې خبرې به موږ بار مذمت کړو د بیا ډېره مهرباني. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम ने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है। गुज़िश्ता एक साल में सियासी, माशी और सिफारती मैदान में कामयाबियाँ हुकूमती कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए खवारिज का उन्होंने कहा कि मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। तफसील बता रहे हैं असद यार खान अपनी रिपोर्ट में। दिगनून की मखलूत हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा पेश किया गया। गुज़िश्ता एक साल माशी बदहाली से माशी इस्तेहकाम का सफर है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माशी इस्तेहकाम के असूल को टीम वर्क और शबाना रोज मेहनत का नतीजा करार दिया। उन्होंने इत्तेहादी जमातों के कायदीन की हमायत और ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। तारीख में पहली मरतबा यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के आज इदारे मार्च कर रहे हैं, मिलकर हाथों में हाथ मिलाकर। तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम, आप सबकी मेहनत और टीम वर्क। IMF से 7 अरब डॉलर के कर्ज के असूल में दोस्त मुल्कों के ताउन का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सऊदी अरब ने 1.2 अरब डॉलर के तेल की अदायगी एक साल के लिए मौखर की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी को रोल ओवर किया। आज मुल्क में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 9.5 साल की कम तरीन सतह पर है। डार साहब को दुगनी मुबारक दी कि इनके ज़माने में 2018 में जो इन्फ्लेशन थी वो 3.5% थी। अब माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, अपना रिकॉर्ड बीट कर दिया, आज 1.6% है। पाकिस्तान के अगर रिजर्व जो हैं वो आज से एक साल पहले अगर $4 बिलियन से 12 या 13 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। पॉलिसी रेट बैंक्स का वो 22.5% है, आज अगर वो 12% पे आ गया। और उम्मीद की जानी चाहिए, स्टेट बैंक का इख्तियार है कि इसमें मजीद अब कमी की गुंजाइश है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान आगे बढ़ने का रोड मैप है। तरक्की व खुशहाली की मंजिल के असूल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। ये तरक्की और खुशहाली का सफर तभी इसमें तेजी आएगी, तभी उड़ान पाकिस्तान बनेगा, जब तक हम इस मुल्क के अंदर जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द जो हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते। वजीर आजम ने कहा कि गवर्नेंस के निजाम को डिजिटाइज और करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। अदालतों में 4000 अरब रुपए के महसूलात से मुतल्लिक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाया जाएगा। इस हवाले से 23 अरब रुपए के महसूलात की रिकवरी खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि सरकारी मलकियती इदारों का 850 अरब रुपए का खसारा कौमी खजाने पर बोझ है। डिस्कोर्स में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के साथ मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करना है। 9 मई के हमलों के हिस्सेदार हम नहीं, हम 28 मई के नंबरदार हैं। हमें इंशाअल्लाह 2029 तक पाकिस्तान को 60 अरब
डॉलर बरामदात करने वाला मुल्क बनाना है। विजन 2035 में हमने इंशाल्लाह 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है हमने पाकिस्तान को। सबसे बढ़कर हमें जिद, नफरत और एहतजाज को दफन करना है, मुफाहमत और प्यार और मोहब्बत को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल और वजीर इतलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को 1 साल की हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। माशी इस्तेहकाम की मंजिल के असूल के बाद बरामदात, सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों का फ़रोग़ अब हुकूमत की तरजीह है ताकि शरह नमू में इजाफ़ा किया जा सके। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहियान ने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार को टेलीफोन किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने अबू ज़बी के वली अहद के हालिया दौरा पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत की। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद भी दी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का पहला साल बेमिसाल कामयाबियों से इबारत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की 12 माह की मुसलसल और अनथक कोशिशों की बदौलत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क बन चुका है। कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियां बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रही हैं। इसकी तफसील बताएंगे उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदब्बिराना क़यादत की बदौलत पाकिस्तान 1 साल के कलील अरसे में एक बार फिर आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ है। 1 साल के दौरान मुतअद्दिद गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत ने पाकिस्तान के दौरे किए और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आज़म ने भी विजन सेंट्रल एशिया के तहत दोस्त मुल्कों के अहम दौरे किए और इक्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद रखी। इस दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, बेलारस, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे किए। जहाँ हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशा है, वहाँ जुग़राफ़ियाई महल वक़ू, सी-पैक, कराची और गवादर पोर्ट्स बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर आमादा करते हैं। इस हवाले से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का किरदार भी मिसाली है, जिसके जरिए सरमायाकारों को एक ही छत तले सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। PTI के दौरे हुकूमत के पहले साल में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 844 मिलियन डॉलर की कमी, जबकि मुस्लिम लीग नून के पहले साल में बैरूनी सरमायाकारी में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में दोस्त मुल्कों खुसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक नई जेहत मिली है। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के पहले ही दौरे में बरादर मुल्क ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर्स के मनसूबे शुरू करने पर इत्तेफाक किया, जिसके तहत पहले मरले में ज़राअत, लाइव स्टॉक, तेलो गैस और मादनियात समेत दीगर शोबों में 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का आगाज हो चुका है। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ होने वाली मुलाकातों के नतीजे में अक्टूबर में सऊदी सरमायाकारों के एक बड़े वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया और 2.8 अरब डॉलर के मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए। ब्रदर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। गुज़िश्ता साल मई में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान में IT, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। UAE के सरमायाकारों के एक बड़े वफ्द ने नवंबर में पाकिस्तान का दौरा किया और मुफाहमत की 4 यादाश्तों पर दस्तखत किए। अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। दौरे के दौरान बैंकिंग, कानकनी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में 5 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज का तबादला भी हुआ। चीन के शहर शेंज़न में बिजनेस फोरम का कामयाब इनेकाद सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की कोशिशों का मुंह बोलता सबूत है। फोरम में चीन की मारूफ कंपनियों ने पाकिस्तान के निजी शोबे के साथ IT, ज़राअत और लाइव स्टॉक, मादनियात और कानकनी के शोबों में अरबों डॉलर्स के मुश्तरका मनसूबे शुरू करने पर इत्तेफाक किया। चीन और पाकिस्तान ने सी-पैक के दूसरे मरहले पर तेज तरीन अमल दरामद पर भी इत्तेफाक किया है, जिसके तहत चीनी सनतों की पाकिस्तान में मुंतकिली और सनती जोन का क़याम शामिल है। ये इकदाम दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए इंतहाई कशिश का बायस साबित होगा। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के दौरान तस्वीराती शराकतदारी को वुसअत देने के लिए ट्रांसपोर्ट, बुनियादी ढांचे, सनत, तवानाई और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में 32 मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने अक्टूबर में कतर की क़यादत से मुलाकात करके गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करने के हवाले से हुकूमत के अज़्म और हिकमत अमली से आगाह किया और कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी।
तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोवान ने गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद का दौरा किया और बाहमी तजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाने समेत पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देंगे। इस मौके पर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 24 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान ने सरमायाकारों को सहूलतें फराहम करने के लिए SCO रुकन मुल्कों और वस्त एशियाई रियासतों के साथ फजाई और जमीनी राब्ते शुरू किए हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों मुल्कों ने तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों का तबादला किया। पाकिस्तान और बेलारूस ने 2025 से 27 के दरमियान जामे ताउन के रोड मैप पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता माह अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के दौरे किए और दोनों मुल्कों की क़ियादत से दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने समेत सरमायाकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अज़रबैजान में सदर इल्हाम अलियौफ ने अप्रैल में पाकिस्तान आमद और अज़रबैजान की $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, तरजीही तिजारत मुआहदे पर अमल दरामद समेत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी और कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया। आलमी बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में सेहत, तालीम, तरक्की नौजवानान, समाजी और निजी शोबे में $40 अरब की सरमायाकारी करेगा, जिससे मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी का बढ़ता हुआ रुझान इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रही है। यही वजह है कि बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। SAFC की मुआवनत से M12, M6 और M13 मोटरवे मंसूबों की जल्द तकमील के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। NHA की आमदन को तरक्याती मंसूबों में मुअस्सर इस्तेमाल के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 मंसूबे की तकमील अव्वलीन तरजीह है। सियालकोट खारिया M12 और खारिया रावलपिंडी M13 मोटरवे को भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। M12 और M13 मोटरवे की 6 लेन्स तक तौसीह से तिजारती सरगर्मियों में इजाफा और सफरी वक्त में 40% कमी मुतवक्के है। खबरों का सिलसिला भी जारी है। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेघर आवाम को छत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत की है। उन्होंने 19 अजला में फाटा की साबका 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म देते हुए फंड्स जारी करने के लिए इकदामात की हिदायत की है। इजलास में फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्जे देने का भी जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी शुरू हो चुकी है, जिसका तनासुब 100% है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9661 घर ज़ेर तामीर हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 365 दिन का हर रोज हर लम्हा पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की रिलीफ की खुशखबरियां लेकर तलू हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुजरे 1 साल में पाकिस्तान ने मायूसी से एतमाद, नाउमीदी से उम्मीद नौ, इंतशार से इस्तेहकाम और डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर माशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र किया है और महंगाई 38 से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने हर नया दिन मुल्क और कौम के खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब को करीब ला रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी हुकूमत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। गली
भरी भरी तुझे मुझे देखने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बीडीवी न्यूज और चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल और मैं हूं रुमैसा कुरैशी। सबसे पहले बात करेंगे आज के अहम मैच की, लेकिन उससे पहले रुमैसा हम कल के मैच की बात करते हैं जो कि पहला सेमीफाइनल था। क्या शानदार मैच था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेला गया, वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और भारत कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गया। ऑल दो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा टारगेट भी दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो स्टीवन स्मिथ आउट हुआ और उसके बाद मैक्सवेल आउट हुए, उसके बाद उनका टारगेट जो था वो 300 को क्रॉस नहीं कर सका। और भारत की बैटिंग का तो आपको पता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप खत्म ही नहीं होती, तो उन्होंने ये सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि वो अब फाइनल खेलेंगे, और उनके साथ फाइनल कौन खेलेगा ये आज 2 बजे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मैच शुरू होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल है, जो कि दूसरा सेमीफाइनल है और खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मामले। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज का मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाएगा कि आज जो भी जीतता है वो फिर फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा, और इंडिया और आज अगर न्यूजीलैंड जीतता है या फिर साउथ अफ्रीका जीतता है, फिर वो टीम और फिर इंडिया की टीम दुबई स्टेडियम में मध्य मुकाबिल होंगे, और फिर देखा जाएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनलिस्ट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पोर्ट्स बुलेटिन। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें एक मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह रह चुकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का 1998 में होने वाला पहला एडिशन जनूबी अफ्रीका ने जीता। फाइनल में प्रोटीज ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेटों से हराया था। कीनिया में होने वाला दूसरा एडिशन न्यूजीलैंड के नाम रहा। फाइनल में कीवीज ने भारत को 4 विकेटों से शिकस्त दी। What a shot that was. Oh, there's something on it. Yeah. चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच 2 बजे शुरू होगा। हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। मौज़म, बताइएगा फैंस किस टीम को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का आज दूसरा सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाना है। पहले सेमीफाइनल मैच के अंदर गुज़िश्ता रोज़ भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, फाइनल में जगह बनाई थी। टूर्नामेंट का फाइनल अब दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का आज जो सफ़र है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल के लिए तमाम टिकटें जो हैं वो तकरीबन सेल हो चुकी हैं, और आज एक बड़ी तादाद में क्रिकेट शौकीन जो हैं वो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे आएंगे और मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। दोनों टीमों के कप्तानों ने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे प्रेस टॉक की उनका ये कहना था कि मैच को जीत कर फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। साउथ अफ्रीका के कप्तान का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि उनके ऊपर जो चोकर्स का एक टैग लगा हुआ है उसको वो हटाएं, सेमीफाइनल को जीतें और फिर फाइनल में जाकर फाइनल मैच जीत के टूर्नामेंट को अपने नाम करें। तो बिल्कुल आज यहाँ पे एक बड़ा कांटेदार मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। 12 बजे के बाद क्रिकेट शौकीन का दाखिला जो है वो स्टेडियम में खोल दिया जाएगा। स्टेडियम के अंदर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर कांटेदार मुकाबले क्रिकेट शौकीन को देखने को मिले। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, तो क्रिकेट शौकीन जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ हुए, मैचेस को एंजॉय किया। आज चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफ़र है पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मैच जो है वो 2 बजे शुरू होगा। क्रिकेट शौकीन जो है बड़ी तादाद में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे आएंगे, मैच से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है। दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के दरमियान में 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त देखा जा सकेगा। जी, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में शायकीन को फ्री इफ्तार कराई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने वालों को फ्री इफ्तार दी जाएगी। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज्जा वाला इफ्तार बॉक्स हासिल कर सकेंगे। शायकीन स्टेडियम के इंडोर स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। नाज़रीन, भारत 5वीं मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से हरा दिया। 84 रन की इनिंग्स खेलने वाले विराट कोहली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। तफसील बताएंगे ज़ीशान क़य्यूम। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, ताहम उसकी टीम 49.3 ओवर्स में 264 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर कूपर कोनॉली सिफर पर अपनी विकेट खो बैठे। भारत के लिए खतरे की अलामत। ट्रेविस हेड ने जारहाना खेल पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो 39 रन बनाने के बाद कैच आउट हुए। ट्रेविस हेड ने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। A lot of time to play that shot.
bilateral series. Straight back. There is a fielder there. The catch is taken. मार्नस लाबुशेन 29 और जोश इंग्लिश 11 रन्स बना सके। Catching. Oh, and the wicket. कप्तान स्टीवन स्मिथ ने वनडे कैरियर की 35वीं निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 73 रन्स बनाने के बाद बोल्ड हो गए। एलेक्स कैरी ने 61 रन्स की इनिंग्स खेली। Oh, lovely shot. I just said he was playing the field. Oh, lovely shot. भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 3 विकेटें हासिल की। वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। This time Kohli takes it. He's bowled it. It's all over. 264 in his setup. भारत ने 265 रन का हदफ 48.1 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। Oh, dragged on. An inside edge. Oh, that's close. The figure's gone up. It looked out. विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तीसरी विकेट की शिराकत में 91 रन का इजाफा किया। श्रेयस अय्यर 45 रन बनाकर बोल्ड हुए। तजुर्बाकार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक मर्तबा फिर जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए 84 रन की इनिंग्स खेली। उनके वनडे कैरियर की ये 74वीं निस्फ सेंचुरी है। कोहली की इनिंग्स में सिर्फ 5 चौके शामिल थे। अक्षर पटेल ने 27 रन जोड़े। Hard sweep, big sweep. Bowled him as we were praising him. 2 मरतबा टाइटल जीतने वाला भारत मजमूई तौर पर 5वीं मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जिशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। Down the track, finish it off with a 6. So India win by 4 wickets. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने कहा है कि भारत को 300 रन का हदफ न देना मैच के नतीजे पर असरअंदाज हुआ। मुस्तकबिल में टीम बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए स्टीवन स्मिथ ने कहा कि पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाना टीम की हिकमत अमली का हिस्सा था, लेकिन मैच में इंतहाई अहम मौके पर मोहम्मद शामी ने उनको बोल्ड कर दिया। इनिंग्स के अहम तरीन मौके पर विकेट गंवाने से मैच पर गिरफ्त कमजोर हो गई। उन्होंने कहा कि फुल टॉस पर विकेट गंवाना मैच का फैसला कुन लम्हा साबित हुआ। अगर हम अपना ये हदफ उबूर कर लेते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, जबकि हमारी तरफ से कुछ मौके जाया हुए जिनकी वजह से 260 का हदफ काफी साबित न हो सका। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में विराट कोहली ने शानदार 84 रन की इनिंग्स खेलकर भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेटों से फतह दिलाने में अहम किरदार अदा करते हुए फाइनल में पहुंचाया। 84 रन की इनिंग्स में कोहली ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। विराट कोहली को आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले बैटर का एजाज हासिल हो चुका है। कोहली ने आईसीसी वनडे टूर्नामेंट्स की 53 इनिंग्स में 24 बार 50+ स्कोर किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास था, जिन्होंने 58 इनिंग्स में 23 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की थी। कोहली सचिन तेंदुलकर का वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी के बाद अहम एजाज अपने नाम किया। रोहित शर्मा पहले कप्तान हैं जिन्होंने अपनी टीम को आईसीसी के 4 बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया है। रोहित शर्मा की क़यादत में भारत ने 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और फिर वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। दोनों में इसे ऑस्ट्रेलिया ने मात दी। रोहित की कप्तानी में भारत 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचा और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर दूसरी बार चैंपियन बना और अब भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पहुंच गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला लाहौर पहुंच गए। राजीव शुक्ला वाहगा बॉर्डर से लाहौर पहुंचे और वो कजाफी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल देखेंगे। भारत वफ्द लाहौर में 2 रोजा कयाम करेगा।
नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी का हाल आप जान चुके। अब इंतजार करना होगा दिन 2 बजे का। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। आपको बताते चलें कि जो ये सेमीफाइनल जीतेगा वो 9 मार्च को भारत के खिलाफ दुबई में फाइनल खेलेगा। बिल्कुल, और आज का सेमीफाइनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेमीफाइनल से ये पता चलेगा कि भारत के साथ कौन सी टीम जो है वो मैच खेलती है। तो स्पोर्ट्स बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया रुमैसा और समी। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। खबरनामे में नाज़रीन अब बात करेंगे मोदी के भारत की, जहां पर खवातीन इंतहाई गैर महफूज हैं। आए रोज़ खवातीन खुद मुख्तार, बाशऊर, आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेशतर मजालिम का शिकार हो जाती हैं। रवा मावी भारतीय शहर हरियाणा में 22 साल खातून के अंदोना कत्ल का वाक़या पेश आया। सफाक कातिल ने नौजवान खातून को कत्ल करके लाश सूटकेस में छुपा दी। कांग्रेस ने दावा किया कि कत्ल होने वाली खातून कांग्रेस और क्रेमनी नारोवाल हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेमनी नारोवाल को पहले ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बाद अज़ां गला दबाकर कत्ल किया गया। भारत में ख़वातीन पर माशरती और सियासी दबाव की वजह से ख़वातीन खुद को निहायत गैर महफूज महसूस करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के कमिश्नर वोल्कर टर्क ने काउंसिल की पेश करदा रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर फिक्रमंदी जाहिर की है। वोल्कर टर्क ने मणिपुर में तशद्दुद और बेदखली के मसले को भी हल करने के लिए बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन वानी ने हाई कमिश्नर की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के जमहूरी दावों और कश्मीर पर जाबराना इक़दाम के दरमियान वाज़ेह तसाद पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल परवेज शाह ने कश्मीर में सहाफ़ियों और कारकुनों के खिलाफ हिरासानी और हाई कमिश्नर की तशवीश का खैर मकदम करते हुए कहा है कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी जमहूरियत की नकाब कुशाई पर शर्मिंदा होना चाहिए। मिस्र की मेज़बानी में गजा के मुस्तकबिल के हवाले से होने वाले हंगामी अरब सरबराह इजलास में काहिरा की तरफ से पेश करदा मंसूबे को मंजूर कर लिया गया। मंसूबे पर $53 अरब लागत का तखमीना लगाया गया है। ये रकम गजा की ज़मीन पर दोबारा तामीरात और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी। इजलास में आलमी बिरादरी से भी मुतालबा किया गया कि वह जंग से तबाह हाल गजा के हवाले से मिस्र के मंसूबे की हिमायत करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा की पट्टी में जारी जंग का खात्मा पूरी दुनिया की मुश्तरका जिम्मेदारी है। एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल को खबरदार किया कि गजा में बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करे। उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी बात दोहराई कि गजा में मौजूदा कशीदा सूरत हाल का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। लाहौर हाई कोर्ट के 4 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख, तारिक महमूद बाजवा और अबर गुल खान ने बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट अपने ओहदों का हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सीनियर तरीन जज जस्टिस शिजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी के अलावा दूसरे जज साहिबान, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल पंजाब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और सीनियर वकला समेत हल्फ उठाने वाले जज साहिबान के अजीजो अकारिब ने भी शिरकत की। 4 नए एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 47 हो गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध सूबे की खवातीन को मजीद बाख्तियार बनाने के लिए शब व रोज़ कोशां है। हुकूमत सिंध का मंसूबा है कि नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज जल्द फ्राहम की जाएं। स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजरों के वफ़द से कराची में मुलाकात में सीनियर वजीर ने सिंध में इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ करवाने और ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के इम्कानात पर बात की है। वफ़द की जानिब से सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफ़द को सिंध में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की पेशकश की है। वफ़द को हुकूमत सिंध की जानिब से मुकम्मल ताउन और सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसियाँ फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। सीनियर वजीर ने कहा कि सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे।
हैदराबाद गैरिशन में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा फैकल्टी मेम्बरान ने पाक आर्मी के साथ खुशगवार दिन गुजारा। तलबा ने पाक आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल जदीद असलहे का मुआयना किया और स्मॉल मशीन गन्स और पिस्टल के फायर से लुत्फानंदोज हुए। तलबा ने फौजी जवानों की जंग के दौरान मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करने की मशकों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने GOC हैदराबाद गैरिजन से तफसीली मुलाकात की और सवालों जवाब का एक तफसीली सेशन हुआ। GOC हैदराबाद गैरिजन ने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों के जरिए फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को समझना और इससे बचना वक्त की अहम ज़रूरत है। बच्चों ने आज ये जो दिन गुजारा है पाक आर्मी के साथ, बच्चों का बड़ा अच्छा कोलिशन। सो अल्टीमेटली ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट डे एंड इससे एक विद इन द आर्मी एंड जो हमारी सिविलियंस है उसके दरमियान एक हारमोनी एंड काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस रहा और ऐसे इवेंट्स होते रहें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी इंगेज हों और इनमें इंटरेस्ट बढ़े। Do more fun, have different activities. Thank you so much. Always been a dream and I'm super happy to be a part of it कि मुझे ये opportunity मिली कि मैं यहाँ आई। I just had an APC ride and it was amazing. It was so much fun and I'm really thankful to Pakistan Army. आर्मी स्टाफ के साथ हमने एक दिन गुजारा है आज, हमें बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान आर्मी को हम करीब से देख रहे हैं, क्या उनकी जो रिवायात हैं उनको देखने का मौका मिल रहा है। ये एक बेहतरीन इवेंट है और इस पर हम शुक्रगुजार हैं पाक आर्मी और हैदराबाद कैंट के। शहादा ने अपने खून से आबियारी करके वतन अजीज की बुनियादों को मजबूत किया। शहादा में से एक हवालदार मोहम्मद इरशाद शहीद ने 20 फरवरी 2022 को वतन के फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। उन्होंने सोगवा ईरान में वालिदैन, बेवा और 3 बच्चे छोड़े। शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि वो अक्सर शहीद होने की दुआ मांगने का कहा करते थे। लिस्ट में आए, मैंने कहा कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, तो कहने लगे जब मैं आर्मी में आया था मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे शहादत की मौत मिले। आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें होंगी लेकिन बच्चे बड़े होकर इधर उधर हो जाएंगे, अपनी बच्ची की तरफ से ज़्यादा तवज्जो रखनी है। आप 3-4 दफ़ा मुझसे कहा है उन्होंने कि बस आप मेरे लिए ये दुआ करना कि मैं शहीद हो जाऊँ। मतलब मैं आर्मी में गया हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मुझे शहादत की मौत मिले। 2-3 दफ़ा मैंने कहा कि इस तरह की बात ना करें, ज़रा पीछे हम लावारिस हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि शहीदी कभी मरता नहीं है। अगर मैं अल्लाह ना करे कि मैं इस दुनिया में ना रहूँ, मुझे इस तरह की मौत मिल जाए तो आपने बहुत सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चों को कभी मेरी कमी महसूस नहीं हुई। जब मेरे 2 बेटे हुए उस वक्त इतना वो खुश नहीं हुए थे जितना जब मेरी बच्ची हुई है वो खुश हुए हैं। आखिरी दफ़ा जब छुट्टी आई अरशद साहब 1 माह की छुट्टी पे आए हुए थे, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हुई थी उनमें। वो भी कम घर से निकलते होते थे, इतना ज़्यादा किसी के घर नहीं जाते होते थे। अरशद साहब के शहीद होने से पहले फिलहाल की ये ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूँ, तो बाप बेटे में बहुत झगड़ा होता था। आप उसमें लड़ते होते थे कि नहीं बाबा इसके कहते होते थे। पंजाब हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल और मुसलसल मॉनिटरिंग से सूबे भर में अशाए खुरोनोश के नरखों में कमी और मयार में बेहतरी आ चुकी है। वज़ीर आला की मुआवने खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मॉडल बाज़ारों और सहूलत स्टॉल से 4 लाख से ज़ायद अफराद ने खरीदारी की। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे के तमाम अजला में खुद इंतजामात की मॉनिटरिंग और चेकिंग के लिए दौरे कर रही हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की तरह खानेवाल में भी रमज़ान सहूलत बाजार लगाए हैं। सहूलत बाजारों में रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें आम मार्केट से कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। तफसील जानिए हमारी नुमाइंदे गुलज़म बशीर अहमद से। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए खानेवाल में भी सहूलत बाजार कायम किया गया है, जहां आम मार्केट से कम निरखों पर फलों, सब्जियों और गोश्त समेत दीगर खाने पीने की अशिया के स्टॉल लगाए गए हैं। सहूलत बाजार में 10 किलो का आटा आम मार्केट की निस्बत 65 रुपये कमी के बाद 790 रुपये, चीनी 25 रुपये कमी के बाद 130 रुपये फ़ी किलो, खजूर 415 रुपये फ़ी किलो, घी 10 रुपये कमी के बाद 530 रुपये फ़ी किलो, बेसन 275 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने रमज़ान बाज़ार खानेवाल स्टेडियम में लगवाया और बाज़ार की निस्बत यहाँ पर जो है 20 से 25% जो है वो लेस मिल रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और तकरीबन सारी चीज़ें नर्ख से काफ़ी हद तक कम है, 20% 30% रेट कम है। अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, इसको करना चाहिए, वेल डन। जी, हुकूमत पंजाब का ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। बाज़ार से तकरीबन 20 से 25% कम रेट पे हर चीज़ मुहैया की जा रही है आवाम को और एक ही छत तले हर चीज़ मुयस्सर है। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, ये 20-25 रुपये फ़ीसद कम रेट पे मिल रहा है सामान। यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, हुकूमत ने बहुत अच्छा किया। सहूलत बाजार में ताज़ा फलों और सब्जियों के साथ साथ दूसरी खाने पीने की चीज़ें वफर मिकदार में मौजूद हैं, जहां पर शहरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खरीदारी कर रहे हैं।
सहूलत बाजार 27 रमज़ानुल मुबारक तक फ़ाल रहेंगे। सहूलत बाज़ारों में जहां अवाम को रिलीफ मिल रहा है, वहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी हो रही है। कुलज़म बशीर अहमद, PTV न्यूज़, खानेवाल। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहेगा। ताहम मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -13, अस्तूर, कालाम -6, स्कर्दू -4, मालम जब्बा, कोयटा -3, गोपिस, कल्लात और पाड़ा चनार में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।